नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस आपकी होस्ट सुमिता के साथ। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ स्क्वामिश, कैट्सी, सिल्वरटूथ एंड मॉस्कियम नेशंस. I guess we can't ignore the fact that Surrey Memorial Hospital is BC's busiest hospital, only one hospital serving over 600,000 people in Surrey area. Last weekend, the ER doctors organized a rally at the City Hall to bring awareness at the crisis at Surrey Memorial Hospital. While in the Vancouver, population is couple thousands more, but they have 5 hospitals serving the population. In Surrey, the doctors call it a crisis south of Fraser. Schools are back in session, and if you are driving by the school zone, please make sure you follow the posted speed, which is 30, and stay within the speed limit. RCMP and ICBC are teaming up to stop people who are speeding especially in school zones. September is Arthritis Awareness Month, and they're busting some of the biggest myths about 100 plus diseases that impact over 6 million people, Canadians, living with this disease. That's right, arthritis isn't just one disease, it raises different challenges for different people. Let's take a short break, and we will be back after a few words of our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pyle Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. For all your party rental needs, a Langley Party Rental is open under the new management. The location is Unit 230-19358 6th Street in Langley. No job is too small or too big for your special occasions. So give them a call at 604-530-9155 or email info@langleypartyrentals1@outlook.com. United Pallets and Crates is located at 11585 134th Street in Surrey, BC. Give Sam Dooler a call at 604-760-2028 or call the office number at 604-634-2001. You can also visit the website, which is www.unitedpalletsandcrates.com, or send us email at info@palletsandcrates.com. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की फीजी की न्यूज लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज के साथ मैं हूं विक प्रसाद। अटॉर्नी जनरल सिरमी तुरंगा ने पुष्टि की है कि एक्टिंग सुपरवाइजर इलेक्शंस फिजी लेबर पार्टी के नेता और अन्य द्वारा फॉर्मर फाइके कमिश्नर रश्मि असलम के खिलाफ शिकायत से संबंधित मामले की जांच की जाएगी। तुरंगा का कहना है कि सस्पेंडेड चीफ जस्टिस कमल कुमार और सस्पेंडेड कमिश्नर ऑफ पुलिस ब्रिगेडियर सितिवेनिंग गिलिहो के खिलाफ मिसकंडक्ट की सुनवाई के लिए गठित ट्राइब्यूनल ने कमिश्नर ऑफ फाइके असलम के मामले को सुनवाई को भी उम्मीद की है। उनका कहना है कि नए फाइके कमिश्नर को असलम के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी। तुरंगा का कहना है कि फाइके की स्पष्ट दिशा नए कमिश्नर द्वारा बनाई जाएगी। जुडिशल लीगल सर्विस कमीशन के उस पद के लिए अटॉर्नी जनरल की सिफारिशों को सुनने के लिए अगले सप्ताह बैठक होगी। इस बीच फिजी लेबर पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी का कहना है कि उन्हें राहत है कि रश्मि असलम ने इस्तीफा दे दिया है। चौधरी का कहना है कि उन्होंने पिछले साल फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इलेक्टोरल कमीशन सुरेश चंद्र और फॉर्मर सुपरवाइजर इलेक्शन मोहम्मद सनीम पर फ्रॉडुलेंट सिटिंग अलाउंसेस के दावे के लिए सुरेश चंद्र को कथित पेमेंट के लिए मुकदमा नहीं चलाने के लिए असलम को बर्खास्त करने की मांग की थी। उनका कहना है कि मामला अधिकतर तौर पर इस साल की शुरुआत में एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस अना मतईदीवा द्वारा जांच के लिए उनके पास भेजा गया था।
चौधरी का कहना है कि जब उन्होंने आखिरी बार उनसे 1 महीने पहले पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया था कि अभी भी फाइक की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। उनका कहना है कि अब अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा को बताया गया है कि असलम को कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन न करने के लिए अकाउंटेबल ठहराए बिना क्या कोई रिहा नहीं किया जाएगा। चौधरी का कहना है कि उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए कि एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस द्वारा महीने पहले दर्ज किए गए आधिकारिक शिकायत के बावजूद चंद्रा और सनी मामले को अभी तक अंतिम रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है। शनिवार को किए गए बॉलीवुड वोटर सप्लाई के टेस्टिंग के बाद वोटर अथॉरिटी ऑफ फिजी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेरू सोबेक ने पुष्टि की है कि डैम साइट में कोई मरा हुआ जानवर या कुछ भी असामान्य मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार रात कहा कि बॉलीवुड में दूषित पानी पीने से मंगलवार से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद वो वास्तविक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ग्रामीणों के कथित तौर पर बताया गया कि एक मरी हुई गाय संक्रमण का कारण है और मिनिस्ट्री के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर्स के साथ साथ वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया था। मंत्रालय दूषित जल स्रोत के कारण बॉलीवुड के निवासियों से डायरिया के मामले की संख्या में वृद्धि से चिंतित है और नुकुलवा, नदादी और तोंगे से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सोडबर्ग का कहना है कि वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी वाटर सैंपलिंग के परिणामों को वैलिडेट करने और पब्लिक हेल्थ को उनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय बॉलीवुड के आसपास के क्षेत्रों में जनता को पानी को उबालने और भोजन से पहले और बाद में और शौचालय जाने के बाद में साबुन और पानी से उचित हाथ धोने जैसी सर्वोत्तम स्वच्छ प्रथाओं का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। नववा के एक 32 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर को पिछले महीने पैसिफिक हवा में एक रिजॉर्ट में एक टूरिस्ट के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर बलात्कार के 2 मामले और इंडिसेंट असॉल्ट का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि रिजॉर्ट के समुद्र तट पर ड्रिंकिंग पार्टी के बाद यह घटना हुई। उन्हें पिछले महीने के अंत में नाववा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। 32 वर्षीय को आज एक और अदालत में पेश होना है। पुलिस 5 वर्षीय ग्रेस लोमानी की तलाश कर रही है क्योंकि यह बताया गया है कि रविवार सुबह लोकिया लैंडिंग से उनकी कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। पुलिस का कहना है कि बच्ची लोकिया चर्च के बाहर खेल रही थी जबकि उसके दादा दादी अंदर थे। आरोप है कि एक अज्ञात महिला बच्चे को ले गई है और एक ग्रे रंग की गाड़ी में मौके से भाग गई है। पुलिस व्हीकल के विवरण के संबंध में अधिक जानकारी स्थापित करने का प्रयास कर रही है। चेक पॉइंट स्थापित कर दी गई है और तलाशी के प्रयास जारी है। जनता से आग्रह है कि जहां भी वो यदि इस बच्चे को या ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी है तो वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या क्राइम स्टॉपर्स को 919 पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। उस समय सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए गए एक वीडियो में एक वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट क्रूजर को ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट पर ईस्ट की ओर जाते हुए दिखाया गया था। इससे पहले कि क्रूजर ने कोलंबिया और मुख्य सड़कों के बीच सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसे तब बुलाया जाता है जब कोई ऑफिसर किसी एक घटना में शामिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर डैमेज या मृत्यु होती है, नोट करता है कि जिस व्यक्ति को टक्कर लगी थी उस टक्कर से गंभीर उसे चोट आई है। आईआईओ ने जुलाई 2023 में एक अपडेट में कहा है कि जांच पूरी होने पर चीफ सिविलियन डायरेक्टर रोनाल्ड जे मैकडोनाल्ड केसी ने सबूतों की समीक्षा की और निर्धारित किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद है कि एक ऑफिसर ने ड्राइविंग अपराध किया होगा। परिणाम स्वरूप 38.11 ऑफ द पुलिस एक्ट के अनुसार इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने आरोपों पर विचार करने के लिए बीसी अभियोजन सेवा को एक रिपोर्ट भेज दी है। बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है कि कांस्टेबल जैक ज़ाओ ने अभियुक्त है और पहली अदालत में उपस्थिति उनकी 28 सितंबर को निर्धारित है। निराश डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को अभी भी सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में वह देखभाल नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है और वे इस सप्ताह के अंत में इसके बारे में कुछ
करने की योजना बना रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स बीसी सरकार से सरी मेमोरियल अस्पताल में फंडिंग बढ़ाने की उम्मीद के साथ शनिवार दोपहर को सरी सिटी हॉल के बाहर एक रैली की योजना बना रहे हैं। विरोध ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रणदीप गिल का कहना है कि प्रोविंस की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सही नहीं चल रही है और सरी अस्पताल में क्षमता की कमी के कारण कई लोगों को देखभाल के लिए अन्य जगहों पर ट्रांसफर किया जाता है। गिल, जो 10 वर्षों तक सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में ईआर डॉक्टर रहे, कहते हैं कि अस्पताल के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। फिजी अंडर 23 मेंस ओएफसी चैंपियनशिप के अंतर्गत न्यूजीलैंड और फिजी के बीच में जो फाइनल मैच हुआ उसमें न्यूजीलैंड की जीत फिजी से 9-0 से हुआ। डिजिटल सेमीफाइनल में सोलोमन आइलैंड्स की जीत 3-0 से हुआ था, या फिजी की जीत सोलोमन आइलैंड से 3-0 से हुआ था और गोल बनाने वाले थे एंटोनियो दोंगलाउ, ब्रेंडन मैकमिलन और तीसरा गोल बनाया था कैप्टन ने 2 गोल बनाया और उधर ब्रेंडन मैकमिलन ने 1 गोल बनाया था। न्यूजीलैंड ने वनुआतु को सेमीफाइनल में 8-0 से पराजित करते हुए फाइनल में जगह बनाया था। न्यूजीलैंड अब 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुका है। रग्बी वर्ल्ड कप के तहत कुछ खेल हुए हैं। फ्रांस ने न्यूजीलैंड को 27-13 से पराजित किया। इटली ने नामीबिया को 52-8 से पराजित किया। आयरलैंड ने रोमानिया को 82-8 पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया की जीत 35 से जॉर्जिया से और इंग्लैंड की जीत 27-10 से अर्जेंटीना से हुआ। फिजी और वेल्स के बीच में जो रविवार को खेल हुआ उसमें वेल्स की जीत 32 पॉइंट्स टू 26 से हुआ और कहा जाता है कि ये खेल जो रेफरी किया गया था वो उच्च दर्जे का नहीं था। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत लोटोका और तालेवोने सीरी के बीच में जो खेल हुआ उसमें लोटोका की जीत तालेवोने सीरी से 3-1 से हुआ। लोटोका के पास अब 31 या 37 पॉइंट्स हो चुके हैं और अपराइजिंग ग्राउंड्स में सुबह और नांदी के बीच में जो खेल हुआ उसमें सुबह की जीत नांदी से 2-1 से हुआ। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया है आप हमें कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद जी को कॉल कर सकते हैं और हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। We have in our studio Kaskis Khan, who is doing 12th annual Mustari Begum Festival on September 23rd. देखते हैं इस साल क्या नया होने जा रहा है। So welcome to Fiji in Focus और हमारे गेस्ट आए हुए हैं जो उन्होंने फाउंडर्स ऑफ मिस्त्री बेगम फेस्टिवल, दो सीनियर्स दैट आर वाचिंग आज देख रहे हैं। आपको याद है कौन मिस्त्री बेगम थी? और वो फिजी में भी काफ़ी उसका नाम था। वहाँ से जब यहाँ पर वो इमिग्रेशन अपने हस्बैंड के साथ में आई, माइग्रेट हुई, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना जो पैशन था उसको छोड़ा नहीं। शी वॉज वन ऑफ इट्स काइंड। तो उसी के नाम पर मिस्त्री बेगम फेस्टिवल एवरी ईयर उसके नाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और ये होने जा रहा है मैसी थिएटर में on 23rd of September। और जो मिस्त्री बेगम फेस्टिवल है, जो फाउंडर्स है, वो आज हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे मिस्त्री बेगम फेस्टिवल के विषय में। So welcome अमिका, welcome Cassius। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Yeah, so Cassius, I'll start with you। हाँ। बोलो, कब से आपने शुरू किया और how do you know मिस्त्री बेगम? अच्छा, तो मिस्त्री बेगम तो हमारे गुरु रही और वही से हम गज़ल सीखा, वही से हम गाना सीखा उनके घर से। नॉट जस्ट फ्रॉम मुशी बेगम बट उनके हस्बैंड शेख मोहिद्दीन और उसके भाई जो है रुखसार अली जो तबला बजावे। तो आफ्टर मुशी बेगम डाइड तो हम सोचा कि कुछ श्रद्धांजलि करें मांगे हमारे गुरु जी के नाम पे कि उसके नाम मिटे नहीं। दिस इज़ वाई द मुशी बेगम फेस्टिवल बिगैन। जब हम लोग नाम सोचता रहा तो बहुत सारा नाम आया, लेकिन जब हम उनके कब्र पे गया और जब हम उसके नाम देखा हमला ने ई फेस्टिवल का नाम मुशी बेगम फेस्टिवल रही और 12 साल पहले 2012 में शुरू किया और आज भी हम लोग इसको करते आए हैं। और शी वॉज अ टीचर, आपके गुरु थे आप। उसी के साथ में सभी तबला और जो है ढोलक वगैरह उसी तबला ढोलक नहीं, तबला और गाना तबला गाना वही से सीखा। और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जो छोटा छोटा जो चीज़ है क्लासिकल म्यूजिक के बारे में सब जो न्यूएंसेस है उसके जो अंदर जो कोड की चीज़ है सब हमें बताई से जहाँ तक बता सके एंड देन वहाँ से हम अपना काम करते आया। कितना दिन यू वर अ स्टूडेंट? 20 साल से ऊपर। ओह अच्छा। 20 साल से थोड़ा ऊपर।
उसके संगे हम 20 साल रहा। आप उसके साथ में फिजी में शुरू किया, जब वहाँ पर यहाँ पर आ गई कनाडा में? नहीं, जब कनाडा आई से तब हम कनाडा आई से तो हम लोग भी कनाडा में रहा। अच्छा, वो टाइम तो हमारा जो पिताजी काम करता रहा उसके भैया के संगे, रुखसार अली के संगे। एंड देन वहाँ से जब पता चला कि तबला के शौक है तो बोले अच्छा ई फैमिली के पास जाओ, उनसे के कुछ बता दे। एंड देन फ्रॉम दैट टाइम ऑन हम जब वहाँ गया तो फिर मुर्शी बेगम भी मिली, तो बोले आप तो अच्छा गाना भी गाता है तो गाना भी सीख लो। तो गाना के संगे संगे तबला और तबला के संगे संगे गाना, और ऐसे शुरू किया और तब से हम करते आया है। अमिका, आप आप हमें बताइए कि किस दिन होने जा रहा है? मुशर्री बेगम फेस्टिवल सितंबर 23 को होने जा रहा है, जो सैटरडे पड़ता है। एंड जो टाइमिंग है वो 7 बजे शुरू होता है कॉन्सर्ट। 6 बजे वहाँ पे लॉबी में डोर्स वगैरह सब खुल जाएंगे। प्लीज़ आप आइए, थोड़ा जल्दी आ जाइए। और मैसी थिएटर में हो रहा है, तो टिकट्स और पूरा इन्फॉर्मेशन सब उनके वेबसाइट पे है www.masseytheatre.com। अगर चाहो तो आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं at 604-521-5050। और जो टिकट्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। वी हैव अडल्ट का रेट भी है और स्टूडेंट सीनियर का थोड़ा डिस्काउंट पे रेट है। और जो बच्चे 12 साल और कम की उम्र में हैं उनका फ्री में उनका टिकट है। बट आप प्लीज़ उनको बता दीजिए कि आई एम कमिंग विद चिल्ड्रन अंडर एज, तो फिर वो सीट रिजर्व कर देंगे। तो बस यही है, प्लीज़ कम एंड सपोर्ट अस। और जो हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, जो मुशर्री बेगम जी के जो लेगेसी है उसको भी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और हमें भी अच्छा लगेगा। और नो डाउट हम we're पॉजिटिव कि आपको भी मज़ा आएगा। जो 12 साल से हम लोग इतना काम कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस हम लोग लाएंगे, जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, एडमिंटन से आ रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा फॉर श्योर। मैंने आपको पूछना था आर्टिस्ट के बारे में, तो आपने बोल दिया। हाँ, तो जयपुर से पंडित सलील भट्ट जो सात्विक वीणा बजावे हैं, जयपुर से आवे हैं। एडमिंटन से डॉक्टर कमलजीत गिल बहुत अच्छा गाना गावे क्लासिकल। और मतीन क़याम एक यंग लड़का है लेकिन बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है। और साथ साथ में अमिका कथक डांस करी, अमिका हारमोनियम भी बजाई, हम तबला इसके लिए भी बजाएगा, सबके लिए बजाएगा, सबके लिए गाएगा भी, अपने लिए भी गाएगा। तो हम तो फुल टाइम है स्टेज पे। तो हम बिगिनिंग टू एंड पंडित सलील भट्ट के संगे, अमिका के संगे, कमलजीत के संगे हम तबला पे बैठा देगा और गाना भी गाएगा। And it's going to be fun. Amika bhi sabke sange harmonium bajai. So we're going to have a fun time. So those are the artists that are coming. Thank you so much. On the same note, as we know, Shah is it's Rogers in partnership with Shah. That's the new name. And Jim Rees from Shah, he has been such a huge supporter of your event. Every year he's there, and all year I can watch a little bit and pieces what he records, right? Absolutely. Yeah. So he is such a big supporter. So if you want to see Shah Rogers in partnership with Shah and Jim Rees, come out, check us out. I'll be there and see you both on the stage on the 23rd. It's just 2 weeks away. That's right. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 53rd Independence Day of Fiji will be celebrated on October 14th at Bollywood Banquet Hall in Surrey at 6:30 p.m. We are looking for sponsorships for 3 categories of sponsorships: gold, silver, and bronze. For more information, please call Kevin Chan at 604-562-4569, Camilla Singh at 604-537-5123, or Sarah Sharma 604-992-7253. Shakti Society presents 4th Annual Shakti Film Festival on October 13th and 14th at SFU Theatre at Central City in Surrey. For more information, please call Sonia Andhe at 604-307-8796 or Niti at 604-506-0953.
Surrey ICBC Run for the Cure is taking place on October 1st. This is the largest single-day volunteer-led event in Canada to support breast cancer cause. It will be a 1K or 5K walk run that raises funds for the Cancer Society. For more information, please call Sandhya Prashad at 778-788-6936. Once again, Sandhya Prashad at 778-788-6936. I will see you there. We will show you some highlights at 47th NAFSA Can AM soccer tournament that was held in North Surrey Secondary Field at 1594 596th Avenue in Surrey. Please have a look at the opening ceremony of this event. An exclusive interview with Rosie Khan Gopal, treasurer of Fiji Soccer League. आज हम सोका फील्ड से आपके लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, जबकि यहाँ 47th नापचा कैनम सोका गेम हो रहा है और उसमें हमारे साथ में है रोजी खान गोपाल, जो कि शी इज अ ट्रेजरर. शी हैज बीन अ ट्रेजरर फॉर countless, I don't know how many years. 25 years. So she's the only woman with this with the executive of Fiji Soccer League. So let's welcome her. Welcome, Ji. Thank you. So I know guys are very interested in soccer because they played soccer back home. How did your interest came in becoming involved with the soccer team? Being born in Fiji, my parents encouraged it. Actually, my father was a very prominent soccer player back home, and also he was a grass hockey fielder, and he also danced a lot, and he was in the live band. So my father brought me up very different, very modern back in the 50s and 60s. I migrated to Canada in 1968 and have been living here since then. So बचपना मेरा गुजरा है कनाडा में. So grew up with the ethics of the Canadian, and soccer didn't leave my heart. I was, my brothers all played in soccer, all my cousins. It was all about soccer. So I remember back in the olden days when we migrated to Canada, my father says, okay, you can't go to the field now. And I could never understand why. So I would hide in my car, chup ke, dekhti thi soccer from the road, and because of the love of soccer. Yeah. So at that time, to let somebody go alone and watch soccer was just not possible back then. But it didn't stop me. So my heart has always been in there. And then when I got married to Harry, he was also a very soccer prominent figure. And he asked me to join him in Fiji Soccer. He was a president. No, he wasn't a president at that year. Okay. So 1999, Fijian Soccer League was incorporated. And they started with a whole bunch of executives and FOM. And by the end of the year, the president was Mr. Taj Muhammad. He approached me to become the treasurer of the league. So I accepted him. But I was the quiet treasurer of the league. I just did the books, stayed in my office. I was managing my own company, which was electric company with my husband, Rich Van Electric. So he felt comfortable to ask me if I could just do the books for the league. And I said, sure, it's a community service. And I was good with numbers, so why not use it to the best of it? And so I was going to ask you, so you are the only woman on the team as executive. How is it to work with all the guys? This is what I was trying to get to, is that I was the quiet treasurer for a couple of years. Yes. And then they had asked me to come forward to the meetings and give my opinion. And I'm telling you, it was a huge struggle. They don't want to hear a woman talk. They didn't want to hear no opinion. They didn't want absolutely nothing to do with a woman. But my brother Taj gave me that respect, and he made the people listen. So kudos to him. He resigned in a couple of years. Then my husband Harry became the president. Well,
then it's history. I sat on the board, came out, did my book, said my piece, and I left. I made sure the legalities were followed, and rules and regulations, I left it to the guys to handle it. Also, I also see they have a lot of respect for you. Even all the guys I see, they are much younger, but they have a lot of respect for you. From older to the youngest, from Beni to Bhabi to Mommy to Fua, for everyone. And now they're calling me daddies and nannies. So now I'm a grandmother. And you know what? I love them. They have respected me from day one to this day. And I'm very proud of my community. My men community here has given me a lot of respect. And also their wives and daughters did too. They came out in the field, they supported me, and today I'm having a blast joining Ronald Chaudhry, and went to see the ladies group play in Fiji. Fantastic, phenomenal games they played. And I bless them all for the future, and at the end of the day I'll also ask for some woman power. And you want other women to join you as you have joined. Yes, please. I am requesting any women who are interested to join our league, please contact me. You have my name. It's on the website of the FijiAnsoccerLeague.com, and we can talk and go from there. Thank you so much, Rosie. You're such a strong backbone of this organization. Thank you. हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सब लोगों से विदा लेना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़े रहें। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं every Thursday at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and in Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजी इन फोकस देख सकते हैं। अगर आप वहां पे हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिजी इन फोकस ब्रिंग्स 3 other shows। आपके लिए लाते हैं हम एशियन पल्स टीवी शो एवरी वेडनेसडे एट 1:30 p.m, Thursday at 8 p.m and Saturday at 5:30 p.m. हमारा दूसरा शो है कमेला सिंह टॉक शो on every Monday at 10 a.m. and Sundays at 5:30 p.m. हमारा तीसरा शो है विटी वाइब्स टीवी on Thursdays at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all of our shows. अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को 10 बजे शाह टीवी पे। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं for spending your valuable time with us. Please watch all our shows and like and share on YouTube. I'm your host Sumita Sharma. फिर मिलते हैं।